مہینوں کا، اور اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک نارمل اسپیشل یہ. پھر ہم نے تیسری چیز پڑھی تھی کہ ٹیکسیبل انکم پہ ٹیکس لگے گا. ٹیکسیبل انکم بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی ایک ایگزیمپٹ انکم بھی ہوتی ہے. ہاں جی، ٹوٹل انکم سے ایگزیمپٹ انکم مائنس ہوتی ہے تب ٹیکسیبل انکم، اور اس میں پھر فردر ہمیں جو ہے الاؤنسز، ڈیڈکٹیبل الاؤنسز بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں آئیڈیا ہوگا. اب پرسن کیا ہے، کون کون پرسن کی کیٹیگری میں فال کرے گا. تو نمبر 1 پرسن کی ڈیفینیشن کیا ہے سیکشن 80 کے اکارڈنگ. We learned from the preceding discussion that tax is chargeable on the taxable income of a person as per subsection 1 of section 80. Following are treated as person. Number 1 an individual، ایک عام انڈیویجول بندہ، صحیح ہے، اس میں سول ٹریڈر سیلیڈ پرسن بھی آ گیا، اگر بزنس ہے انڈیویجول تو وہ بھی آ گئے اس میں، ٹھیک ہے. انڈیویجول کے علاوہ کمپنی، ایوری کمپنی ایز اے پرسن، کمپنی کیا ہے، پرسن ہے، اور انڈیویجول کیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے سیدھا سیدھا. اور کیا ہے، ایسوسیشن آف پرسنز، پارٹنرشپ، تو تین ہی لیگل وہ ہوتی ہے بزنس کی. سول ٹریڈر آ گئے انڈیویجول میں، پارٹنرشپ بھی آ گیا اور کمپنی بھی آ گئی. تو یہ تینوں کہاں فال کرتے ہیں، پرسن کی ڈیفینیشن میں. اچھا، ایسوسیشن آف پرسن انکارپوریٹڈ فارم آرگنائز اور اسٹیبلش ان پاکستان اور ایلس ویئر، کہیں پہ بھی رجسٹرڈ ہو، صحیح ہے، پارٹنرشپ. اچھا، پھر اس کے بعد دا فیڈرل گورنمنٹ، یہ دیکھو فیڈرل گورنمنٹ بھی پرسن کی کیٹیگری میں آتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو وفاقی حکومت ہے، صحیح ہے. پھر فورن گورنمنٹ، باہر گورنمنٹ، صحیح ہے. پھر پولیٹیکل سب ڈویژن آف اے فورن گورنمنٹ، پولیٹیکل سب ڈویژن آف اے فورن گورنمنٹ. پاکستان میں ایسی کوئی ایگزامپل کہ باہر کا کوئی ڈویژن ہو ادھر، مطلب پولیٹیکل، یو کے کا کوئی ادارہ ادھر ہو، ایمبیسی، کوئی اور ادارہ جو فورن گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرے. ایمبیسیز ہے نا. ڈویژن کیا ہوتا ہے، ایک کوئی آرگنائزیشن، کوئی سیٹ اپ. اب دیکھو ہر کنٹری میں باہر کنٹریز کی ایک ڈویژن ہوتی ہے جو اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب یو کے کی گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ادھر ہوں گے کہ نہیں، یو کے ایمبیسی ہے، یو ایس ایمبیسی ہے، فورن افیئرز، باقی ساری چیزیں. تو یہ بھی فورن اس میں پرسن کی ڈیفینیشن میں. اور پبلک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یو این، باقی آپ دیکھ لو جتنے بھی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، آپ دیکھ لینا اس میں کون کون سے آتے ہیں. پبلک انٹرنیشنل آرگنائزیشن، جتنے بھی ادارے ہیں انٹرنیشنلی جو کام کر رہے ہیں، صحیح ہے. ایسوسیشن آف پرسن. اچھا، ڈیفینیشن آف پرسن انکلوڈ ڈفرینٹ انٹائٹلڈ اینٹیٹیز، سو دیز آر ڈیفائنڈ اینڈ ڈسکس ہیئر انڈر. الگ الگ اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ایسوسیشن آف پرسن، ایسوسیشن آف پرسن انکلوڈ اے فرم. فرم کیا ہے، جو عام پارٹنرشپ فرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی، یہ بہت پہلے جب ہم ایک ساتھ رہتے تھے پاکستان یا پارٹیشن سے پہلے، تو ایک آپس میں ان کا کوئی سیٹ اپ ہوتا تھا ہندو فیملیز کا، برادری کا، تو وہ بھی ایک پارٹنرشپ ٹائپ سیٹ اپ تھا، تو انہوں نے وہ مینشن کیا. اینی آرٹیفیشل جوریڈیکل پرسن، صحیح ہے. اینی باڈی آف پرسنز فارم انڈر اے فارن لا بٹ ڈزنٹ انکلوڈ اے کمپنی. یہ کمپنی کے علاوہ جو بھی ایسوسیشن آف پرسنز ہوں گے، کوئی سیٹ اپ ہوگا، مل کے کوئی ایک بندے سے زیادہ 2 3 بندے 4 بندے وہ مل کے کام کریں، تو وہ ہم کیا کس ڈیفینیشن میں فال کرے گا، ایسوسیشن آف پرسن ادر دین کمپنی، صحیح ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کے علاوہ. Firm means the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership کی جو ڈیفینیشن ہے وہی بتا رہا ہے، ایسوسیشن آف پرسن. اچھا، سیکشن 2 کا سب سیکشن 8 کیا کہتا ہے، بورڈ. بورڈ کا لفظ جب بھی آئے گا ادھر
बोर्ड, हाँ तो इसका मतलब क्या होगा ये, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, FBR हो गया, सही है। फिर ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007, ये जो बोर्ड है ये किस लॉ के अकॉर्डिंग बना है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 देयर ऑफ, ठीक है भाई। कंपनी का है, कंपनी मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे बी लॉ में, कंपनीज एक्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में उधर। तो इस एक्ट जो भी कंपनी रजिस्टर होती है ना पाकिस्तान में, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है, कंपनीज एक्ट 2017। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी रजिस्टर होगी वो कंपनी के उसमें फॉल करेगी। अ स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो है स्मॉल कंपनी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन है वो भी कंपनी के डेफिनेशन में आएगी। और अ बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट के अलावा कोई भी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई बॉडी कॉरपोरेट कोई स्ट्रक्चर इस तरह हमने कंपनी का बनाया है गवर्नमेंट के लेवल पे या किसी और लेवल पे, तो वो भी कंपनी के डेफिनेशन में फॉल करेगी। अब मुदारबा क्या है भाई, एक इस्लामिक वो है ना मुदारबा लीज़ वाला जो है, एक पार्टनरशिप होती है एक लीज़ होती है, तो इसको इस्लामिक उसमें हम कहते हैं मुशारका मुदारबा, ठीक है। ये चीज़ अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। भाई आपकी मुल्क में कोई फॉरेन कंपनी है, वो तो पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं बनी, फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग बनी है, लेकिन वो भी कंपनी में फॉल करेगी। A foreign association, whether incorporated or not, with the board has by general or special order declared to be a company for the purpose of this ordinance। कोई भी बाहर का कोई सेटअप है, एसोसिएशन है, कोई मिलजुल के बंदे काम कर रहे हैं लेकिन फॉरेन सेटअप है, सही है, तो हमने गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया एज अ कंपनी फॉर टैक्स पर्पस के लिए। गवर्नमेंट के पास FBR के पास ये इख्तियार है, अगर वो उस सेटअप को एज अ कंपनी डिक्लेयर करें तो वो कंपनी होगी, सही है। अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी किस कैटेगरी में आता है, कंपनी की डेफिनेशन में। अ लोकल गवर्नमेंट क्या है, देखो प्रोविंस के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें होती है ना, एक तो सूबा होता है, फिर ज़िला डिस्ट्रिक्ट होता है, डिवीज़न होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ये लोकल गवर्नमेंट में आता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे पहले नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो ये तीनों जो है किस कैटेगरी में आएंगे, कंपनी में। नेक्स्ट है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर है जो बाहर बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट है कि एक कम्युनिटी के लोग मिलके कोई सेटअप बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करके उसमें डालते हैं और एज अ होल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बहुत से इलाके गांव हैं, बैकवर्ड्स एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर वो ज़्यादा है, वहाँ पे फार्मिंग, तो वहाँ पे उनके लिए इक्विपमेंट परचेज़ करना मुश्किल है, तो वो पैसे इकट्ठे करते हैं, मशीनरी वगैरह परचेज़ करते हैं और जिसको चाहिए वो यूज़ करते हैं टाइम पे, सही है। या फिर एक मिलके कोई सुपर स्टोर बना लिया बड़ा, तो जो सोसाइटी के लोग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें वो मेंबर्स होते हैं, वो सारे वहीं से परचेजिंग वगैरह करते हैं। एक तो चीज़ें उनको सही रेट पे मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती है, दूसरा उसका जो प्रॉफिट होता है एंड पे वो सब में डिवाइड हो जाता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी कंपनी में ही फॉल करेगी। अ फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, जो भी इस तरह की सोसाइटीज़ है वो भी कंपनी में फॉल करेगी। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी क्या है,
कंपनी में फॉल करेगी। ट्रस्ट भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप चीज़ होती है, लेकिन ये कुछ बाय लॉ इनके उसमें स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। ट्रस्ट में कौन होते हैं? ट्रस्टी, जो मेंबर्स होते हैं। एक ट्रस्ट होते हैं ना, अब्दुल सत्तार ईदी का, वो भी एक ट्रस्ट टाइप है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, अपने मेंबर्स के उसके लिए। एक तो होता है ना ओवरऑल लोगों के लिए, एक कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक ट्रस्ट या एनजीओ हम बनाते हैं कि ये हम एजुकेशन में काम करेंगे, सही है, ये हम हेल्थ में काम करेंगे, फिर उसके अलावा वो पैसे नहीं खर्च कर सकते अपने जिस पर्पस के लिए उन्होंने वो सेटअप रजिस्टर्ड किया है, सोसाइटी ट्रस्ट जो भी है। और एरिया भी स्पेसिफाई होता है कि हम ये पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में काम करेंगे या एक सूबे में काम करेंगे, सही है। अ ट्रस्ट, एन इक्विटी or a body of person established or constituted by or under any law for time being in force। किसी भी लॉ के अंडर ट्रस्ट एक्ट है, एक ट्रस्ट एक्ट होता है, एक अलग लॉ है ट्रस्ट एक्ट। सोसाइटी एक्ट है, अलग लॉ है। हाँ, ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट, अगर किसी भी उस लॉ के अंडर आप रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप टैक्स पर्पस के लिए कहाँ पे, किस डेफिनेशन में होगे? कंपनी की डेफिनेशन में, ठीक है। तो इसमें जितने प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल, लोकल, फॉरेन ये एम्बेसीज वगैरह, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स, फिर उसमें जो है ट्रस्ट, हाँ, सोसाइटी, ये सारी कहाँ पे फॉल होंगी? सारी चीज़ें कंपनी में। एंड इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू to whom powers of the board have been delegated under section 8 of the Federal Board of Revenue Act। सही है भाई, इसमें जो है मेंबर भी आ जाएगा FBR का, वो भी हम उसको कहेंगे कि भाई ये क्या है? कंपनी है। अब देखो, कंपनी कंटिन्यूड, वही डेफिनेशन आगे कंटिन्यूड है। इसमें ट्रस्ट जो अभी आया था, ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी and arising out of the confidence reposed in and accepted by the owner, or declared and accepted by the owner for the benefit of another or of another and the owner, and include a unit trust। भाई ये क्या चीज़ है? ट्रस्ट में एक चीज़ आपके इख्तियार में, आपके अंडर आ जाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसे हो, चाहे कोई और चीज़ हो, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक स्कोप आप डिटरमिन करते हो कि ये चीज़ इसके फ़ायदे के लिए, ये बंदे इससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रस्ट की डेफिनेशन में आती है चीज़। प्रॉपर्टी हो गई, कोई और चीज़ हो गई जो आप किसी वेलफेयर के लिए आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है। ट्रस्ट आप देख लेना, ट्रस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे सही नहीं है, आप ट्रस्ट एक्ट देख लेना कि यार ट्रस्ट क्या चीज़ होती है, जो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, अब्दुल सत्तार ईदी और इस तरह के बाकी। पब्लिक कंपनी आपको तो पता है कि जिसमें आम लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है भाई सोल ट्रेडर, फिर पार्टनरशिप, फिर प्राइवेट लिमिटेड के बाद पब्लिक लिमिटेड में फिर दो होती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये हम बी लॉ में पढ़ेंगे। लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, सही है, जिसमें शेयर की ट्रेडिंग हो रही होती है, आप भी शेयर खरीदते हो, दूसरा भी खरीदते हैं, तीसरा भी खरीदते हैं। और पब्लिक सेटअप एक हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को, लेकिन बाकी काफ़ी बड़ी कंपनी, अब PIA प्राइवेटाइज हो गया, सही है। अब इसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का भी होता है और कुछ वो प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितनी % ओनरशिप किसके पास है। अब लाइक मैंने देखा था PTCL में शायद 51% गवर्नमेंट और 49। ये क्यों इस तरह करते हैं कि क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग, या जो ज़्यादातर डिसीजंस होते हैं वो बाय वोट होते हैं, तो जिसकी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती, हाँ, तो अक्सर ये होता है कि गवर्नमेंट ख़ुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रखती है। तो पब्लिक कंपनीज जिसमें आम आवाम का या पब्लिक का पैसा हो, शेयर्स हो।
A company in which not less than 50% of share are held by the federal government or provincial government. پہلی کنڈیشن کہ وہ کمپنی not less than 50%، تو مطلب کہ 50% شیئر ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن not less than 50 سے کم نہیں ہونی چاہیے. کس کے؟ یا فیڈرل گورنمنٹ کے یا پروونشل گورنمنٹ. نمبر 2، a company in which not less than 50% of shares are held by a foreign government or a foreign company owned by a foreign government. یا تو فورن گورنمنٹ ڈائریکٹ اس کمپنی میں شیئر ہولڈر ہے، کتنے کا؟ 50% کا، زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن not less than 50%. اور یا وہ فورن گورنمنٹ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے لیکن تھرو فورن کمپنی انوالو ہے. مطلب ایک کمپنی ہے، فورن کمپنی، وہ ہے فورن گورنمنٹ کی، اور اس کمپنی نے آ کے ادھر 50% شیئرز خریدے. A company whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year، clear ہے؟ اینی ٹائم وہ رجسٹر ہو اسٹاک ایکسچینج پہ، اس کی ٹریڈنگ ہو شیئرس کی، اینڈ وچ ریمینڈ لسٹڈ آن دیٹ ایکسچینج ایٹ دا اینڈ آف دیٹ ایئر. یہ امپورٹنٹ ہے. کمپنی